नवयुग का नवसृजन युवाओं तुम्हारे हाथ में है। उठो जागो आगे बढ़ो, ये जहां तुम्हारे साथ में है, ये जहां तुम्हारे साथ में है। And on the day of the first convocation ceremony of Om Sterling University, on the dais, Shri Kamal Gupta ji, Honorable Cabinet Minister in the Haryana government, my very dear friend, a very popular leader and a retired IAS officer, Chaudhary Brajendra Singh ji, member of the Rajya Sabha, our senior colleague, Lieutenant General D.P. Vatsi, Chancellor Shri Puneet Goyal ji, Pro Chancellor Shrimati Poonam Goyal ji, VC Dr. Kaushik ji, dignitaries on the dais, faculty members, non-faculty members, ladies and gentlemen, my dear students and friends from the media. Namaskar, a very good morning to one and all. I am pleased to learn that Om Sterling Global University is holding its first convocation ceremony today. And at this auspicious occasion, I convey my best wishes and heartfelt congratulations to the graduating students, their proud parents, the faculty, and the university administration. Today is indeed an important day for the graduating students. For them, it is not just a day to celebrate your achievements over the past decade, but to charter the course of your aspirations and ambitions. With all that you have learned here and more, you have been armed to meaningfully serve your family, country, and the countrymen alike. As they say, education is a great leveler, and that's why our government gives immense importance to it. And you are well aware, it took more than 34 years to come out with a new education policy. And I can say today, it was formulated with an emphasis on the multidisciplinary nature of studies to provide a holistic learning experience. I can say today, you can hear every year there are new IIT, IIMs, new medical colleges have been opened up, enabling young people to skill themselves and become industry ready. Because education is the backbone for the growth of any country and its people. And as Prime Minister Modi has time and again remarked, that the whole world is looking at India's youth with hope, because you are the growth engines of the country and India is the growth engine of the world. सही मायने में प्रधानमंत्री जी ने ठीक ही कहा है कि आप युवा ही तो भारत के ग्रोथ इंजन हैं और भारत ही दुनिया का ग्रोथ इंजन है, इसलिए आप पर बहुत सारी उम्मीदें टिकी हैं। भारत आजादी का 75वां वर्ष मना रहा है and we need brain gain to make India a fully developed nation by 2047. और विकसित भारत बनाने के लिए शिक्षा की अपार संभावनाएं होनी चाहिए, अवसर होने चाहिए, और शिक्षा और संस्कार के माध्यम से, आप युवाओं के माध्यम से ही हम विकसित भारत 2047 में बनाएं। तो ये अमृत महोत्सव से लेकर अमृत काल की ये यात्रा जो है, भारत को 2047 में विकसित देश बनाने के लिए, जैसे मोदी जी ने अगले 5 वर्षों में भारत को $5 ट्रिलियन इकॉनमी बनाने का संकल्प लिया है। अब कई बार देखने में लगता था $5 ट्रिलियन की इकॉनमी भारत क्या इतनी जल्दी बन सकता है, लेकिन जरा 2 वर्ष पीछे जाकर देखिए, आपने तो यह भी सोचा नहीं होगा कि हम 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था थे, मात्र 4-5 वर्षों के अंदर हमने इंग्लैंड को पछाड़कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बन गया है। और ये उस समय हुआ जब देश और दुनिया कोविड-19 पेंडेमिक की महामारी से जूझ रहा था।
दुनिया के देशों की जनसंख्या कम हो सकती है, लेकिन 140 करोड़ के भारत में यह केवल महामारी की चुनौती नहीं थी, केवल पैंडेमिक की चुनौती नहीं थी, यह भूखमरी के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती थी। तो एक और 140 करोड़ लोगों का पेट भरना, दूसरी ओर आपदा से बाहर लाना। मैं हरियाणा में खड़ा हूं तो हरियाणा के किसानों का भी आभार प्रकट करता हूं, देश के किसानों का भी, जिन्होंने पैदावार करने में कहीं कमी नहीं छोड़ी। इस आपदा के समय भी देश के अनाज के भंडार भी भरे, तो देश की सरकार ने अनाज के भंडार को खोलकर 80 करोड़ लोगों को 2.5 साल तक मुफ्त में अनाज देकर उनकी मदद करने का काम किया है, तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आज दुनिया के सामने अनाज का एक बहुत बड़ा संकट है, और यही नहीं, दुनिया के छोटे छोटे देश भी अपना वैक्सीनेशन का प्रोग्राम नहीं कर पाए, बिकॉज दे वर डिपेंडेंट ऑन अदर कंट्रीज, दे वर नॉट सेल्फ रिलायंट, दे हैड टू लुक एट अदर्स टू इंपोर्ट द वैक्सीन and get the vaccination process done. But it was Prime Minister Modi who had a vision, and I was part of that program when we were facing the pandemic. कोई दिन ऐसा नहीं जाता था मैं, निर्मला सीतारमण जी और अमित शाह जी, प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ मीटिंग ना होती हो आपदा के समय, और हम लोग उस समय कि देश को पैकेज कैसे दिया जाए। कोविड-19 के समय सबसे पहले प्रधानमंत्री अन्न योजना लेकर आए, फिर उद्यमियों के लिए 5 लाख करोड़ रुपए का पैकेज लेकर आए, जो बैंकों से उनको पैसा मिला बगैर अपनी जमीन घर गिरवी रखे, आज तक कभी हिंदुस्तान में नहीं हुआ, उस समय हमने करके दिया। हमारे उद्यमियों ने और व्यापारियों ने भी अच्छा काम किया, तो आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में पहले नंबर पर आकर खड़ी हुई है। ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है मेरे भाई और बहन। कभी जीएसटी कलेक्शन 1 लाख करोड़ नहीं पहुंचती थी, लेकिन आपदा के समय से लेकर आज तक वो 1.5 लाख करोड़ जाती है। कैसे हुआ ये सब? निर्णय ऐसे किए गए कि आज से पहले की सरकारों ने अगर स्पेस सेक्टर को खोल दिया होता, तो जो दिन हमने अब देखा है शायद आज से 30 साल पहले देखने को मिल गया होता। आज जब आप अपनी गाड़ी चलाते हो, बाइक चलाते हो या कार भी चलाते हो, या किसी की गाड़ी में बैठते जो ओला उबर से लेके बाकी सब चलाते हैं, तो गूगल मैप पर आप जाकर जो देखते हैं, ये भारत का कोई भी युवा विकसित कर सकता था, लेकिन स्पेस सेक्टर उसके लिए खुला नहीं था। मोदी जी की सरकार ने आपदा के समय स्पेस सेक्टर को खोला, तो 2 हफ्ते पहले आपने देखा हमारे हिंदुस्तान की एक कंपनी ने रॉकेट को रीलॉन्च करके दुनिया भर की कंपनीज के उसको जो रिक्वायरमेंट थी उसको लोड करके भेजा है। ये हिंदुस्तान ने करके दिखाया, प्राइवेट सेक्टर में करके दिखाया है, बड़ी सफलता के साथ करके दिखाया है। हम आज केवल मंगलयान की बात भी करते हैं। कब हुआ? इसी सरकार के समय हुआ। जहां पर हम कल तक सोचते नहीं, हम उस क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। हम भारत के युवाओं की पोटेंशियल की बात तो करते हैं, लेकिन उनको अवसर देने की बात नहीं करते थे। एंड आई एम प्लीज टू से दिस टुडे, गर्व होता है कहते हुए, एक युवा होते हुए, कि जो 2014 से पहले नहीं था, मात्र 8 वर्षों में भारत के युवाओं ने, जब मोदी जी की सरकार ने स्टार्टअप्स के लिए नई योजना लेकर आए, तो युवाओं ने करके दिखाया है। एक नहीं, 110 स्टार्टअप्स आज यूनिकॉर्न का दर्जा प्राप्त कर गई हैं, यूनिकॉर्न का दर्जा प्राप्त कर गई हैं। हम दुनिया में 85,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स आज हिंदुस्तान में है, और 110 स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न बनने के बाद हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी स्टार्टअप कंट्री हैं। ये अपने आप में हमारे लिए बहुत बड़े गर्व की बात है मेरे भाई और बहनों। ये युवाओं की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप चाहे एक कंपनी को देखिए, दूसरी को किसी का नाम लेना उचित नहीं होगा, लेकिन वो कौन युवा है? कोई 25 साल का है, कोई 30 साल का, कोई ज्यादा से ज्यादा 35 वर्ष का है। और उन कंपनियों के साइज देखिए, कोई 50,000 करोड़ की कंपनी है, तो कोई आज 1 लाख करोड़ की कंपनी हो गई है। कितने वर्षों में? पिछले 7-8 वर्षों में। यह अपार संभावनाएं खोल दिया है।
और अभी तो 5G टेक्नोलॉजी लॉन्च करने का काम मोदी सरकार ने किया है। अगले 1 वर्ष के आप अंदर देखोगे इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, और जो एक और सेक्टर बहुत बड़ा खुल रहा है AVGC, एनिमेशन, विजुअल्स, ग्राफिक्स, गेमिंग, कॉमिक्स, इसके कारण देश भर में करोड़ों लोगों को रोजगार के अवसर खड़े होंगे। आज भी कंटेंट हब भारत बनने जा रहा है। दुनिया भर के लोग यहां आकर फिल्म शूटिंग से लेकर पोस्ट प्रोडक्शन तक के काम करते हैं। बहुत सारे ऐसे सेक्टर जो हम आज तक देखते ही नहीं थे, उन सेक्टर्स में भी हमें आगे बढ़ने का अवसर मिला है। तो मैं तो आज के युवाओं को यही कहूंगा और एक उदाहरण देकर आपको बताना चाहता हूं। एक बहुत बड़े योद्धा हुए, वो एक के बाद दूसरा राज्य जीतते चले गए, और जब ऐसे न अनगिनत राज्यों को जीत कर वो एक के बाद दूसरा युद्ध जीतते जा रहे थे, एक शाम को युद्ध जीतने के बाद वो बैठे तो अपने पंडाल में बैठकर अपने जो ज्योतिष था उसको अपना हाथ आगे करके कहा कि पंडित देख जरा मेरा हाथ क्या कहती मेरी भाग्य रेखाएं। तो उस ज्योतिष ने उसकी हाथ की ओर देखा तो कुछ भी नजर नहीं आया। तो बेचारा डर गया, उसने कुछ नहीं कहा। कहता महाराज क्षमा करें, मैं कुछ नहीं बता सकता। तो उसने कहा तुम्हें बताना ही पड़ेगा, मेरा आदेश है। तो उसने कहा क्षमा करें, मुझे अगर आप दंड नहीं देंगे तो मैं इतना ही कहूंगा कि आपके हाथ में तो आपकी भाग्य रेखा ही नहीं है। तो उसने अपनी कटार निकाली और एक लंबी सी लकीर हाथ पर खींच दी। कहता अब बता मेरा भाग्य क्या कहता है। कहता मैं उसको क्या बताऊं जो अपनी भाग्य रेखा खुद बता सकता है, भाग्य रेखा खुद खींच सकता है, उसका भाग्य मैं क्या बता सकता हूं। तो मैं तो आप सबको इतना ही कहूंगा, कितनों की तकदीर बदलनी है तुम्हें, कितनों को रास्ते पर लाना है तुम्हें। अपने हाथों की लकीरों को मत देखना, इन लकीरों से भी आगे जाना है तुम्हें। और इसलिए मैं आप सबसे ये कह रहा हूं, because you are not only graduating as students, you are the bright youngsters like yourselves as a national asset. You are the national asset, and your learning and development is crucial for our country to lead the world in various aspects. And I've given some examples to you, from the field of startups to the field of space. Not only this, if you look at the inventions and startups today, one of the inventions, Brajendra ji, is that in the nano urea sector. Now for a farmer, एक किसान को अपने खाद और यूरिया के लिए बोरियां ढोनी पड़ती है। आप अगले इन 2-3 वर्षों में देखोगे बोरियां ढोने का काम खत्म हो जाएगा। जितना एक बोरी में यूरिया आता है उससे उतना ही एक बोतल में यूरिया आपको मिल जाएगा। और ये जो ड्रोन आप मेरे ऊपर फूल बरसा रहे थे, वो कभी छिड़काव करने के काम आएगा खेतों में, ये आजकल में शुरू हो गया है। और इससे टेक्नोलॉजी को आप देखिए कितना फर्क पड़ेगा। किसान की लागत भी कम आएगी और उसका मुनाफा भी बढ़ जाएगा। और ये जो हम आमदन दुगनी करने की बात करते हैं किसान की, ये हमने उसकी लागत प्लस 50% मुनाफा तो दे दिया। जो उसको कीमत मिलती थी 2014 में, उससे लगभग 60% ज्यादा हम अब देते हैं। गेहूं और धान पर, दलहन तिलहन पर 70% से ज्यादा देते हैं। खरीद पहले से दुगनी करते हैं। और अब एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के माध्यम से लगभग 1 लाख करोड़ रुपए हम खर्च करने जा रहे हैं, ताकि खेतों के पास ही वैल्यू एडिशन के लिए, उसकी अनाज के लिए और क्या क्या किया जा सकता है। चाहे कोल्ड स्टोरेज की बात हो, आपके जूसेस में पल्प जोड़ने की बात हो। ये किसानों से जुड़ी बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि ऐसे क्षेत्र में हूं जहां खेती बाड़ी को बड़ी प्राथमिकता दी जाती है। और जब मोदी जी मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, तो ये आपके लिए बहुत सारी एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज खोलता है, एक अवसरों के द्वार खोल देता है। क्योंकि आज दुनिया भर की बड़ी से बड़ी कंपनीज, ये अगर मैं एप्पल फोन की बात करूं, आईफोन की, तो ये हिंदुस्तान में बनता ही नहीं था, लेकिन दुनिया के सबसे प्रीमियम टेक्नोलॉजी में गिना जाता है। आपदा के समय भी अगर दुनिया के बड़े बड़े प्लांट्स कहीं पर आए
तो उनमें ये एप्पल वाले भी यहीं पर अपनी मैन्युफैक्चरिंग करने हिंदुस्तान आ गए हैं। ये अपने आप में दिखता है कि भारत किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। यही नहीं, हमने आपसे बातचीत करने के लिए कि युवाओं के मन में क्या चलता है, तो पुनीत जी, हमने युवा संवाद शुरू किए। मैं देश भर में कम से कम 750 युवा संवाद कर रहा हूं, ताकि हम युवाओं से दो तरफी बातचीत कर सकें। इनके मन में क्या है, ये अगले 25 वर्षों में अपने भारत को कहां ले जाना चाहते हैं। मैं तो विकसित भारत देखना चाहता हूं, लेकिन आप अपनी डिग्री लेकर अपने लिए रोजगार स्वरोजगार के अवसर तो खड़े करेंगे। कौन सा ऐसा एक क्षेत्र आप चुनते हैं जहां पर आप समाज में बदलाव देखना चाहते हैं। आपको अगर कहीं गंदगी दिखती तो क्या आप गंदगी मुक्त भारत देखना चाहते हो, तो आप आगे से गंदगी नहीं फैलाएंगे। आप हफ्ते में कोई एक दिन देकर कुछ घंटे क्या स्वच्छता अभियान चला सकते हैं। आपको लगता है शिक्षा के माध्यम से हम गरीब से गरीब व्यक्ति को और ज्यादा सक्षम बना सकते हैं, तो क्या आप कुछ बच्चों को शिक्षित करने की जिम्मेदारी ले सकते हो। क्या आपको लगता है कन्या भ्रूण हत्या एक बहुत बड़ी चुनौती है। जैसे हरियाणा ने इसको चुनौती को लिया और अवसर में बदला। 2014 में हरियाणा में 840 बेटियां होती थी 1000 बेटों के मुकाबले, लड़कों के मुकाबले। मैं प्रसन्नता के साथ कह सकता हूं सन 2022 में हरियाणा में 960 से ज्यादा लड़कियां होती हैं 1000 लड़कों के मुकाबले में। तो हरियाणा ने अपने समाज में वो बदलाव लाकर दिखाया है एक प्रयास से। नहीं तो कभी दूसरे राज्यों से बेटियां लाते थे बेटों से ब्याहने के लिए। ये मैं हरियाणा का उदाहरण बता रहा हूं। हरियाणा ने निर्णय लिया कि हम अपने बच्चों को खेल कूद में आगे बढ़ाएंगे, और लेफ्टिनेंट जनरल डीपी वत्स साहब ने ठीक कहा, और जो भाई ब्रजेंद्र जी ने कहा कि हरियाणा वो भूमि है जहां एक दो मेडल नहीं, ओलंपिक्स में आए, कॉमनवेल्थ गेम में आए, डेफ ओलंपिक्स में आए, पैरालंपिक में आए, अगर 50% मेडल किसी एक राज्य से आते हैं तो उसका नाम क्या है, क्या नाम है। 50% हिंदुस्तान के मेडल कहां से आते हैं, हरियाणा से। क्यों आते हैं, क्योंकि समाज ने पहल की, फिर सरकारों ने मदद की, परिवार ने आगे बढ़ाने का प्रयास किया। जिस समाज में कहीं पर यह भी होता था, कन्या भ्रूण हत्या के मामले भी आते थे, वहां की बेटियां कुश्ती में मेडल जीत कर लाती हैं, शूटिंग में मेडल जीत कर लाती हैं, बाकी खेलों में मेडल जीत कर लाती हैं। तो आज मंच पर अगर डिग्रीज मिलने का काम भी हुआ तो वहां पर बेटियों की एक बड़ी संख्या में देखने को मिली। ये अपने आप में बड़ा सुखद अनुभव देखने को मिलता है मेरे भाइयों। इसी तरह से हमारे लिए एक सुखद अनुभव और सुखद अवसर और भी है, G20 प्रेसिडेंसी। दुनिया के 20 सबसे शक्तिशाली देशों में जो एक ग्रुप है, उन 20 देशों का भारत को अध्यक्षता करने का तब अवसर मिल रहा है जब भारत आज़ादी का 75वां साल भी मना रहा है। 1 तारीख को यह अवसर शुरू हुआ, अगले साल नवंबर तक हमें अध्यक्षता रहेगी। 200 से ज़्यादा मीटिंग भारत के 34 से ज़्यादा शहरों में और राज्यों में जाकर होगी। ये अपने आप में बहुत बड़े अवसर भारत की ओर लेकर आ रहा है कि हम भारत की क्षमता को दिखा सकें। इसी में एक Y20 भी होगा युवाओं के लिए, और मेरा डिपार्टमेंट उसको वो भी करने वाला है। इसलिए मैं आप सबसे सुझाव भी मांगता हूं कि आखिरकार उसमें ऐसे कौन से सब्जेक्ट हो जिस पर चर्चा की जा सके। भारत के युवाओं और दुनिया के युवाओं को ऐसी कौन सी बातों को ग्रहण कर लेकर चलना चाहिए, ऐसे कौन से मुद्दों को लेकर चलना चाहिए जिस पर दुनिया भर के वो युवा काम कर सके। चाहे एनवायरनमेंट पर है, क्लाइमेट चेंज पर है, ड्रग्स पर है, माइग्रेशन पर है, कुछ और ऐसे आपको सुझाव आते हैं तो आप कृपया करके वो भी दीजिए। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने मन की बात में बड़े विस्तार में G20 की बात कही भी थी, कैसे एक बहुत बड़ा अवसर हम सबके सामने आ रहा है। So with all these possibilities and these opportunities coming our way, and as you graduate today, I ask all of you to be proactive, embrace innovation,
get up to date with the latest technologies, read a lot, learn from others, and build your network. And be ready to take on challenges that life will throw at you. And when I say learn a lot, upgrade yourself, you have seen during the pandemic time, it has thrown a big challenge. We have to upgrade ourselves from time to time. We have seen the CEO of various companies also upgrading. We have seen many who have to upskill, reskill, reboot themselves. It is important with the growing innovation and the technological sector we have seen with each passing day, whereas 20 years back, if anyone who has graduated in the field of information technology, even they have to upgrade themselves today. ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज कल तक सॉफ्टवेयर इंजीनियर तक अपना काम करती थी, आज उसको भी सॉफ्टवेयर ने रिप्लेस कर दिया है। मैन पावर भी कम होने लग गई है क्योंकि ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए कि आपकी मैन पावर की आवश्यकता भी कम है। तो एक और जहां चुनौतियां आएंगी कि आपको रोजगार किस क्षेत्र में मिलेगा, वहीं स्वरोजगार के क्षेत्र में बहुत बड़ी संभावनाएं खड़ी हो रही हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, आप केवल रोजगार देने वाले नहीं, रोजगार लेने वाले नहीं, रोजगार देने वाले भी बने। राहुल राणा जी हमारे हरियाणा के युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी हैं, ये भी यहाँ पर आए हैं, मैं इनका भी स्वागत करता हूँ। हमारे पार्टी के कुछ और वरिष्ठ नेता भी यहाँ पर। मैं इतना ही कहूँगा, आज के युवाओं को हमें जो स्किल डेवलपमेंट मंत्रालय कर रहा है और जो एजुकेशन मंत्रालय कर रहा है, उसको भी साथ में जोड़कर कहीं ना कहीं देखना है, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में एजुकेशन के अलावा स्पोर्ट्स, स्किल्स, इन सब पर भी बहुत ध्यान दिया गया है। तो मेरा निवेदन डॉक्टर पुनीत गोयल जी से भी रहेगा और डॉक्टर कौशिक से भी रहेगा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर भी आप लोगों को बार बार जानकारी दें, उस पर चर्चा भी करें। फिर स्किल सेक्टर में हम क्या क्या नए प्रोग्राम शुरू कर सकते हैं। और मेरा एक निवेदन आपसे खेलों के क्षेत्र में भी रहेगा कि खेलों की सुविधाओं का भी हम बढ़ाएं, क्योंकि दुनिया भर के बड़े बड़े देश जो मेडल जीतते हैं ओलंपिक्स में, वहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ का बहुत बड़ा योगदान रहता है। अमेरिका जैसे देश में तो 100 से ज़्यादा मेडल एक एक यूनिवर्सिटी कई बार जीतती है। आप कल्पना कीजिए यूनिवर्सिटीज़ का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है। तो मेरा निवेदन है, आप ये तो कीजिए ही। अंत में मैं अपने युवाओं से एक बात जरूर कहूँगा कि जो फिट इंडिया मूवमेंट प्रधानमंत्री मोदी जी ने चलाई है, वो आप सबके लिए है कि आप मेंटली एंड फिजिकली फिट रह सकें। योग की बात करूं, हजारों वर्ष पहले भारत को योग मिला, लेकिन दुनिया को योग देने का काम और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का काम अगर किसी ने किया है तो वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करने का काम किया। दुनिया भर के लगभग 200 देश अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में इसको मनाते हैं। और दूसरा, फिट इंडिया मूवमेंट में हम फिट इंडिया फ्रीडम रन भी करते हैं, आप भी कर सकते हैं आज़ादी के 75 वर्ष मनाने के लिए। और युवा से मैं इतना ही कहूँगा, फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज। ये आधा घंटा अगर आप अपने लिए निकाल लेंगे तो जीवन भर फिट रहेंगे। आज तो दो डॉक्टर बैठे हैं, डॉक्टर डीपी वत्स, डॉक्टर कमल गुप्ता और डॉक्टर पुनीत गोयल, तीसरे भी जुड़ गए भाई। तो डॉक्टर्स तो हैं, लेकिन इनकी जरूरत कम पड़े तो उतना अच्छा है। और ये तब पड़ेगी जब आप आधा घंटा फील्ड पर लगाएंगे घर के अंदर। आजकल तो एक्सरसाइजेज ऐसी ऐसी कि आप कमरे में योग करें या कोई और एक्सरसाइज करें। मैं बार बार इस बात को इसलिए कह रहा हूं मित्रों, ये आपदा के समय वही लोग अपने आप को बचा पाए ज़्यादातर जो फिजिकली फिट थे, जिनका इम्यूनिटी लेवल अच्छा था। इम्यूनिटी लेवल अच्छा रखने के लिए खान पान भी अच्छा होना चाहिए और आपका फिटनेस लेवल भी अच्छा होना चाहिए। एंड पेंडेमिक हैज़ थ्रोन अगेन some light on day-to-day routine, how we can take out 30 minutes out of 24 hours. And that is why I have given stress in the end on the physical fitness. Because most of us will spend more time on the phone, playing games, messaging or doing something else.
आज तो एक परिवार में अगर 4 लोग रहते हैं तो सबसे बड़ी चुनौती है कि माँ बेटी को भी व्हाट्सएप मैसेज करके बोलती है बेटा खाना खाने आ जाओ, क्योंकि दूसरे कमरे में वो किसी और के साथ चैटिंग कर रहे होते हैं। ये चुनौती है और ये फोन ने आपको कहीं ना कहीं अपना गुलाम बना लिया है। ये टेक्नोलॉजी आपको एम्पावर करने के लिए, गुलाम करने के लिए नहीं है। सो वी मस्ट नो व्हाट इज द प्रायोरिटी फॉर अस। हेल्थ इज द प्रायोरिटी एंड टू स्टे फिट, एक ही याद रखिए, फिटनेस का डोज, मैं पूछूंगा 2-3 बार, फिटनेस का डोज। ये अगले वाले तो कह रहे हैं, पिछले वाले फिट रहने के लिए तैयार नहीं है। फिटनेस का डोज, ये फिटनेस के डोज की बात को आपने याद रखना है, क्योंकि हरियाणा ही अगर खिलाड़ी सबसे बड़े दे सकता है, अन्य क्षेत्रों में जवानों से लेकर किसानों से लेकर नौजवानों तक सब में आपने ही अग्रणी भूमिका निभाई है, तो मुझे लगता है फिटनेस मूवमेंट में भी आप ही सबसे अग्रणी भूमिका निभाएंगे। और एक बार फिर ओम स्टर्लिंग ग्लोबल यूनिवर्सिटी को पहली कॉन्वोकेशन सेरेमनी के अवसर पर मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, और भविष्य के वर्षों के लिए और ढेरों शुभकामनाएं। आप अच्छा करें, सफल हों। जय हिंद, जय भारत।